Well, we are discussing animal form and function too. और इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग डाइजेशन इन द ओरल कैविटी. इससे पहले हमने ओरल कैविटी को देखा. ओरल कैविटी विच इज द फर्स्ट पार्ट वेयर डाइजेशन अकर्स ऑफ द जीआई ट्रैक. तो अब इस ओरल कैविटी जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि द फ्रंट दैट इज द माउथ ओपनिंग, जिसकी बिल्कुल ऑपोजिट टू इट there is the pharynx, the opening again. Sides जो हैं cheeks हैं. The roof of the oral cavity, that is the hard palate, and the lower, that is below the tongue. So इस मॉड्यूल में we will be discussing what type of digestion that occurs, or what is the function, what are the functions of this oral cavity. इसके अंदर first there is a selection of food, then there is a grinding or mastication of food, then the lubrication, and lastly digestion process. So selection of food it is the tongue which plays a very important role. Now this is supplemented by other sense organs जैसे eyes हैं, फिर nose है, smell, if it is good to taste, if it is good to look at, and then if it is good to there is the smell, तो then we start grinding it. और जो grinding का process जो है that is brought about by the teeth which are said to be the cheek teeth. इन cheek teeth में अंदर premolars और molars आते हैं. और इसके बाद फिर lubrication है. Lubrication and digestion. Lubrication means कि that is mixed, the food that is mixed up with the mucus. और mucus कहाँ से आती है? That is produced by the mucus glands which are located in different regions, और वहाँ से फिर डक्ट के ज़रिए माउथ कैविटी के अंदर वो ओपन होती है. तो ये फर्स्ट जैसे हम अब वन बाई वन वी टेक इट अप कि फूड इज सिलेक्टेड दैट इज बाय सेंसेस ऑफ स्मेल, साइट एंड देन द टेस्ट. उसके बाद ग्राइंडिंग है. अब ये है ग्राइंडिंग क्यों की जाती है? व्हेन देयर आर बिग पीसेस दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस. इसकी वजह यह है क्योंकि जब स्मॉलर पीस होता है तो उसका सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम. जैसे जैसे चीज़ बड़ी होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम, तो इसलिए इट इज़ ग्राइंडेड, इट इज़ च्यूड, तो ताकि स्मॉलर पीसेस हो जाएं. और इसकी दो वजूहात हैं, ताकि ये ईजीली एनगल्फ हो जाए, इस फेरिंग्स में से पास हो जाए, और दूसरी बात यह है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि एंजाइम्स की पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाए टू डाइजेस्ट दैट पार्टिकल और द पीस और स्मॉलर चंक into its components. So after selection, food is ground by means of molar teeth into smaller pieces. Now this is useful because esophagus, which is the tube to which food passes down and opens into the stomach. The esophagus allows only smaller pieces to pass through, and smaller pieces have much more surface for the enzymes to enter. Then the lubrication and digestion. Now these are the chief functions of the oral cavity, which is completed by saliva. Now saliva is secreted by three pairs of salivary glands, which are उसकी location ये है, it is sublingual, that is below the tongue, submaxillary, that is behind the jaws, and parotid, which are in front of the ears. ये parotid glands ही हैं जिसमें when they are get infected और mumps हो जाते, और जो कि एक you might be knowing that is mumps disease, which is a viral disease or bacterial disease, rather viral disease. So the saliva which is produced by these glands, they contain water and mucus. Mucus क्या होती है? Something which is very slimy, or that serves to moisten and lubricate food. Lubrication इसलिए जैसे oiling हो जाती है किसी चीज़ की, अगर जब चीज़ बहुत ज़्यादा रफ़ है तो उसकी ऑयलिंग की जाती है, और इसलिए ये जो बोलस है या फूड है,
it is first lubricated. It is lubricated, and this lubrication is by the mucus. Now sodium bicarbonate, which acts as a buffer chemical in mouth. और मकसद ये है कि इसकी pH को मेंटेन रखना, क्योंकि हमारी फूड मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसकी. कुछ अल्कलाइन फूड होती है, कुछ एसिडिक फूड होती है. तो जब हम खाते हैं उसको, तो उसको इस पॉइंट पे ले आती हैं ताकि उसकी एंजाइम्स जो कि टाइलिन है और एमाइलेज है वो सही तौर पे इस फूड के ऊपर एक्ट कर सके. तो pH इज़ केप्ट मेंटेन्ड. और ये जो की pH है इज अबाउट 6.5 और 7.5, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक, थोड़ी सी बेसिक. दैट इज़ ऑलमोस्ट एंड न्यूट्रल पॉइंट में होती रहती है. नाउ एंजाइम लाइसोजाइम एंड थायोसाइनाइड आयंस दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारी यहाँ पे HCl है, लेकिन जो बहुत ही कम है, लेकिन है ज़रूर. और दिस इज़ सफिशेंट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं, ये इसको जितना भी साफ़ कर लें, कोई ना कोई बैक्टीरिया फिर भी रहते हैं. स्पोर्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं. बसा का स्पोर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाय दीज केमिकल्स, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं. तो बैक्टीरिया आमतौर पे दे आर किल्ड बाय दीज दिस इज थायोसाइनाइड आयंस एंड देन द एंजाइम देयर इज लाइसोजाइम. और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, जहाँ पे डाइजेशन का जब हम कहते हैं प्रोसेस हो रहा है इस ओरल कैविटी के अंदर, तो द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एमाइलेज, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन, फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. और कार्बोहाइड्रेट से डाइजेशन स्टार्ट होती है. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है. और जो हमारी फूड जिसमें मेजर पार्ट ये आमतौर पे स्टार्चेस होती हैं, तो ये स्टार्चेस जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज जो कि एक डाइसेक्राइड है. और जबकि स्टार्चेस जो हैं दे आर पॉलीसेक्राइड्स. तो स्टार्च ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है माल्टोज के अंदर. तो फ्रेश सलाइवा इज एल्कलाइन विद pH दैट इज अबाउट 8, लेकिन फिर ये it is adjusted with the elimination of carbon dioxide and gets the pH 6 और 6.5. इतने pH के अंदर वो फिर ये जो एंजाइम्स हैं जिनका हम जिक्र किया, एमाइलेज और टाइलिन, that acts best at this pH. और ये बहुत थोड़ी सी, it all depends कि हम वो फूड कितनी देर हम अपने माउथ में रखते हैं. तो जितना ज़्यादा इसको चबाया जाए, इसको मेस्टिकेशन की जाए, और उतने ही बेहतर है, ताकि डाइजेशन हमारा अगला जो प्रोसेस है वहाँ पे फिर उसकी फैसिलिटेशन हो जाती है. अगर हम उसी तरह फूड चंक बाय चंक, यानी कि बहुत ही विदाउट च्यूइंग अगर हम एनगल्फ कर लेंगे, तो डाइजेशन अगले हिस्से को वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट.